السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، FKGN اسلامک آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ کل جو ہم نے ہماری چینل پہ زکوٰۃ کے بارے میں جو ویڈیو اپلوڈ کیا تھا، اس کو دیکھ کر چند سوالات ہمارے پاس آئے ہیں کہ حضرت ذرا اور آپ تفصیل سے سمجھائے زکوٰۃ کے بارے میں۔ تو اسلامی بھائیوں، آپ ہمارے ساتھ میں بنے رہیں گے، ہم اس ریئیکشن ویڈیو کے ذریعے سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ جو یہ ویڈیو ہم لگا رہے ہیں ریئیکشن کے اوپر، وہ مفتی سلمان اظہری صاحب کا ہے، تو آپ لوگ ہمارے ساتھ بنے رہے تاکہ ہم زکوٰۃ کے جو مسئلے ہیں اس کو ہم لوگ سمجھ سکیں اور صحیح معنی میں زکوٰۃ کس پر فرض ہے، کون دے سکتا ہے، کون لے سکتا ہے، یہ سارے کے سارے جو مسئلے ہیں وہ مفتی صاحب کے ذریعے سے ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ میرے ساتھ میں ویڈیو کے اندر بنے رہیں گے۔ پہلا سوال یہ کیا گیا ہے، زکوٰۃ کن پر واجب ہے؟ ظاہر سی بات ہے، یہ سب سے پہلے معلومات ہونے ضروری ہیں۔ زکوٰۃ مالک نصاب پر، عاقل بالغ مالک نصاب ہو۔ مالک نصاب کسے کہتے ہیں؟ مالک نصاب جو ہے، شریعت نے ایک لیمٹ مقرر کی ہے مال میں، سونا، چاندی، مال، پیسے، اتنے لیمٹ کا جس کے پاس مال ہوگا اس کو مالک نصاب کہتے ہیں۔ وہ لیمٹ کیا ہے؟ سونے میں 7.5 تولہ، چاندی میں 52.5 تولہ، اور پیسوں میں ان میں سے کوئی ایک کی قیمت، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا بھی اگر کوئی مالک ہے، جیسے آج مارکیٹ میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ایگزیکٹ تو میں نہیں بتا سکتا، جو ریٹ چل رہا ہوگا روز الگ الگ ہوتا ہے، 25,000 اگر فار ایگزامپل، تو 25,000 قیمت ہے اس کے پاس، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے۔ سیونگ، انکم کی بات نہیں ہے، سیونگ بچی ہوئی ہے، اور اس پر سال گزر گیا تو وہ مالک نصاب ہوا، اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب کچھ لوگ یہاں پر کنفیوژن کے شکار ہیں کہ کسی نے کہا کہ میرے پاس 5 تولے سونا ہے، 7.5 تو نہیں ہے، 2 تولے چاندی ہے، 52.5 تولہ بھی نہیں۔ میرے عزیزو، یہاں پر اگر ایسی سچویشن ہے تو دونوں نصابوں کو ملا کر کے دیکھا جائے گا۔ جیسے 2 تولہ سونا اور 2 تولہ چاندی کو ملانے پر 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی؟ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو جائے گی۔ اگر کوئی ایک بھی نصاب پورا ہو گیا تو مالک نصاب ہے۔ ضروری نہیں کہ 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ کب؟ جب اس کے پاس پیسہ بھی نہیں، چاندی بھی نہیں، خالی سونا ہے، تو دیکھا جائے گا جب تک 7.5 تولہ نہیں ہوتا تب تک وہ مالک نصاب نہیں ہے۔ یہ شریعت کی چھوٹ ہے۔ اونلی صرف سونا ہے، گولڈ ہے، باقی اس کے ساتھ دوسرا نصاب کا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی مال بھی نہیں، پیسہ بھی نہیں ہے اور چاندی بھی نہیں ہے۔ تو کب تک مالک نصاب نہیں ہوگا یہ؟ جب تک 7.5 تولہ نہ ہو۔ لیکن دوسرے بھی ہیں اس کے ساتھ، یعنی چاندی اور پیسے، تو پھر تینوں کو ملا کر کے کسی ایک نصاب کے برابر ہو جاتا ہے تو مالک نصاب ہوگا۔ اسی طرح سونا بالکل نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، لیکن صرف چاندی ہے اس کے پاس۔ چاندی اگر اس کے پاس 50 تولے بھی ہے تب بھی وہ مالک نصاب نہیں ہوا۔ کیوں؟ اونلی چاندی ہے اس کے پاس۔ کب مالک نصاب بنے گا یہ؟ 52.5 تولہ چاندی۔ اس چیز کو سمجھ رہے نا؟ بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز ہیں کہ ہمارے پاس 10 تولہ چاندی بھی ہے، 5 تولہ سونا بھی ہے، دونوں بھی نصاب کو نہیں پہنچے ہیں، یعنی 7.5 تولہ یہ نہیں ہے اور 52.5 تولہ یہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر 2-3 نصاب کی چیزیں ایک ساتھ آپ کے پاس ہیں تو سب کو ملا کر کے اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو جاتی ہے تو آپ مالک نصاب ہو گئے، آپ پر زکوٰۃ فرض ہے اور آپ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ کسی نے اگر ایسے شخص کو زکوٰۃ دیا تو اس کی زکوٰۃ ادا بھی نہیں ہوئی۔ کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے راشن دے سکتے ہیں یا پیسے ہی دینا ضروری ہے؟ بالکل، جس مستحق کو، یعنی جس کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے، وہ 8 قسم کے لوگوں کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، جس میں سے آج 5 لوگ پائے جاتے ہیں۔ آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین
फ़ी सबीलिल्लाह व इब्न सबील। अल्लाह ताला ने फरमाया सदक़ात वाजिबा यानी ज़कात फ़कीरों को दिया जाएगा। फ़कीर का मतलब वो नहीं है जो ढोल बजाते हुए घूमते हैं। फ़कीर, शरई फ़कीर किसको कहते हैं, उसकी एक डेफिनेशन है, जिसके पास निसाब के बराबर पैसे नहीं हैं। यानी जो निसाब अभी मैंने बताया ना, जो लिमिट शरीयत ने मालिक निसाब होने की बताया, उस लिमिट के बराबर उसके पास पैसे नहीं है तो वो शरीयत में फ़कीर है। उससे भी कम दर्जे का, यानी खाने पीने की भी उसके पास दिक्कतें हैं, वो मिस्कीन है। फ़कीर को दिया जाएगा, मिस्कीन को। और आमिल जो है वो बादशाह की तरफ से वसूल करने के लिए आते थे, लेकिन अब वो नहीं है, उनका भी जिक्र इस आयत में है, वो नहीं है। वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, पहले ऐसा था कि कुफ़ार और मुशरिकीन को भी उनका दिल रखने के लिए, इस्लाम की तरफ रग़बत उनको बढ़ाने के लिए ज़कात दी जाती थी, लेकिन वो हुक्म अब ख़त्म हो गया, मनसूख हो गया, ये भी इस आयत से निकल गए। वो फिर रिक़ाब, और गर्दन आज़ाद करने के लिए, यानी कोई ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ है, आप ज़कात का माल दे करके उस ग़ुलाम को आज़ाद करा सकते थे, लेकिन अब ग़ुलामी का दौर भी नहीं है। ये तीन तो इसमें से निकल गए। पहले दो मैंने बताया, फ़कीर, मिस्कीन, वो हैं। अब आगे सुनिए, वल गारिमीन, अब यहाँ आयत में है जो कर्ज में डूबा हुआ आदमी है, उसको भी ज़कात दे सकते हो आप। यानी वो मालिक निसाब नहीं है और लोगों के कर्ज लिया हुआ है और परेशान हाल है, तो उसको ज़कात दो ताकि वो कर्ज के बोझ से निकल जाए। फ़ी सबीलिल्लाह, इसका मतलब है अल्लाह के रास्ते में जो हैं, जैसे इल्म दीन हासिल करने वाला ये अल्लाह के रास्ते में, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह जो कर रहा है वो अल्लाह के रास्ते में है, तो जो अल्लाह की राह में निकले हुए हैं उनको भी ज़कात दे सकते हैं। जैसे हम मदारिस को देते हैं, मदरसों में जो तलबा हैं वो अल्लाह की राह में हैं, इसलिए उनके लिए ज़कात है। वबनी सबील, और मुसाफिर को, मुसाफिर जो है रास्ते में है, अगरचे वो अपने घर पर पैसे वाला होगा, मालिक निसाब होगा, लेकिन सफ़र में उसके पास पैसे नहीं हैं, तो उसको भी ज़कात के पैसे आप दे सकते हैं। 5 तो मैंने बताया, फ़कीर, मिस्कीन, कर्ज़ वाले को, और अल्लाह की राह में जो है उसको, और मुसाफिर को, इन लोगों को ज़कात आप दे सकते हैं। सवाल यही था। सवाल यानी जिन लोगों को ज़कात देना है, मैंने यही कहा था कि उनको चाहे तो आप पैसा दें, चाहे तो उनकी ज़रूरत का सामान दें, जायज़ है, लेकिन उनको मालिक बनाना होगा आपको। क्या ज़कात कर्ज लेकर अदा कर सकते हैं? जब आपके ऊपर है ही नहीं ज़कात तो कर्जा काहे के ले लोगे? मजीद कर्ज में डूब जाओगे और तुम फिर दूसरों को ज़कात देना पड़ेगा तुम्हें। कर्ज लेकर ज़कात नहीं दी जाती। हो सकता है यहाँ सवाल करने वाला ये कह रहा हो कि वो मालिक निसाब है, लेकिन अभी फ़िलहाल उसके पास पैसे नहीं है। शायद हो सकता है इनके पूछने का मतलब ये हो, यही है। हाँ, अगर ये मसला है तो फिर उसको कहीं से भी अब ज़कात देना है। देखें सिचुएशन कैसी है। 1 लाख रुपए मेरे पास थे, मैं मालिक हूँ, मैं 1 लाख का मालिक हूँ, तो मालिक निसाब हो गया, साल गुजर गया, लेकिन अभी ऐसा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, ज़कात देना था, तो तुम्हारे लिए तो शरीयत ने छूट रखी है, जब तुम्हारे पास पैसा आएगा तब ज़कात दोगे। कर्जा लेकर देने की ज़रूरत नहीं, मज़ीद बोझ में जाओगे तुम। इंतज़ार करो कि वो तुम्हारा जो पैसा है वो आ जाए, लेकिन अगर 5 साल के बाद आया तो 5 साल की ज़कात देना होगा। 3 साल बाद आया तो 3 साल की ज़कात देनी, क्योंकि तुम्हारा पैसा अटका हुआ है, जब आएगा तब दोगे। अभी नहीं है तुम्हारे पास तो तुम्हारे लिए माफ़ है, शरीयत ने कहा इंतज़ार करो। और अगर कर्जा लेकर के अदा कर दिया तो ज़कात तो हो गई, लेकिन वो कर्जा तुम्हारे ऊपर बोझ चढ़ गया, जब तुम्हारी असल रकम आएगी तो कर्ज अदा करना होगा। सवाल ये है, क्या जायदाद पर भी ज़कात होती है? बिल्कुल, यानी जायदाद का मतलब अगर आप ये समझ रहे हो कि बहुत सारे लोग ज़मीनें जो है ले करके इन्वेस्ट करते हैं और बाद में बेचना चाहते हैं, तो ये माल तिजारत हुआ, उस पर भी ज़कात है। तिजारत का जो माल है उस पर भी ज़कात है। लेकिन जायदाद का मतलब अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप जिस घर में रह रहे हैं या घर बनाने के लिए कोई जगह लिए हैं, उस पर ज़कात नहीं। ऐसी जायदाद जो आप ज़रूरत के लिए लिए हों, वो चाहे करोड़ों की क्यों ना हो, उस पर ज़कात नहीं। ये हाजत असलिया में से है, ज़रूरत में से है। हाँ, अगर कोई एक
थोड़ी सी एक टुकड़ा ज़मीन का ही आपने इसलिए लिया कि आज इसकी कीमत 10 लाख है, मैं रखूँगा, चंद दिनों के बाद 20 लाख हो जाएगी, मैं बेचूँगा, तो आप उसमें तिजारत कर रहे हैं ना। तो तिजारत की नीयत हुई आपकी, तो उस ज़मीन पर भी ज़कात है। मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम भी राशन के मोहताज है, तो क्या उन्हें इस हालत में ज़कात के पैसे दे सकते हैं? ज़कात ये शरीयत का हक़ है, ज़कात ये शरीयत का हक़ है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों पर फ़र्ज़ किया है। ज़कात सिर्फ साहिबे इस्लाम को, मुसलमान को ही दी जा सकती है। हाँ, मदद की बात जहाँ तक है, गैर मुस्लिम है उनकी भी आप मदद कर सकते हैं मखलूक़ खुदा होने की हैसियत से। अगर उनमें से कोई मोहताज है आप मदद करें, लेकिन ज़कात के पैसों से नहीं, दूसरी अमाउंट से आप उनकी मदद कर सकते हैं। मैं मदद की ममानियत की बात नहीं कर रहा हूँ कि मदद नहीं कर सकते किसी, इस्लाम तो मदद करने का हुक्म देता है, लेकिन ज़कात चूँकि पर्टिकुलर एक ये हमारे मजहबी हिस्सा है, तो ये सिर्फ उस वक्त ही अदा होगी जब आप मुसलमान को देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या ही प्यारे अंदाज से सलमान अजहरी साहब ने हम लोगों को ज़कात के मसाइल के बारे में समझाया है। तो आज ये वीडियो देखकर हमें सबक ये मिला है कि मालिक निसाब कौन है, किन पर ज़कात वाजिब है, फ़र्ज़ है। दूसरा ये हमें सबक मिला है कि राशन लेकर भी दे सकते हैं, रोकड़ रकम देकर भी दे सकते हैं, नकद में जो पैसे वो रहते हैं वो आप दे सकते हैं, या फिर दवाखाने में जो उसका इलाज चल रहा है, अगर कोई ज़रूरतमंद है तो आप दवाखाने में उसके इलाज के पैसे भी ज़कात के रूप में दे सकते हैं। और आखिर में ये मसला भी क्लियर हो गया, अगर कोई चीज़ हमने अपने खुद के इस्तेमाल के लिए रखी है तो चाहे वो कितनी भी महंगी ली हो, कपड़े हो या फिर मकान हो या गाड़ी हो, जैसे आजकल मोबाइल का दौर है तो मोबाइल हो या कोई और दीगर चीज़ जो हमारे हर रोज़मर्रा की चीज़ों में जो शुमार होता है उनका, अगर ये सब चीज़ें उसके खुद के इस्तेमाल के लिए ली है तो उसके ऊपर उसको ज़कात नहीं लगेंगी। हाँ, अगर कारोबार के लिए कोई चीज़ ली है तो उसके ऊपर ज़कात उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाएंगी। तो हम लोगों को आज के ऊपर ये रिएक्शन वीडियो में सबक ये मिला है, बड़े अच्छे तरीके से मुफ्ती साहब ने समझा दिए हैं। दोस्तों गाइस, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स के अंदर अपना भी रिएक्शन देंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहे और हमारी हौसला अफजाई किया करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।